Yes, sixth part of exercise 5.1 question 4. Again we have to find D. So what we will do, बेटा अगर इन क्वेश्चंस में confusion है then you can write A1, A2, A3, A4 then A2 minus A1 0.22 minus 0.2. बेटा how to subtract it? See, I am doing the calculation work here. 0.22 again 0.2. Beta, if after the point there is a digit and we put 0 then it doesn't matter. Clear? अगर मतलब मैं यहाँ पे लगाती 0, ये लिख देती इसकी जगह 0.02 देन इट इज टोटली इनकरेक्ट. बट मैंने डेसिमल जो डिजिट्स उनके दिए हुए थे उसके बाद 0 लगाया तो इट डजेंट मैटर. ठीक है, 2 में से 0 माइनस किया 2, 2 में से 2 माइनस किया 0, ये ऐसे ही आ गया तो ये आया 0.02. क्लियर? Now A3 minus A2. A3 is 0.222 minus 0.22. Yes, 0.222 point. Again 0, 2, 0, 0 point this. बेटा this is 0.002. आप बोलोगे हमें ये दोनों चीज़ें सेम चाहिए थी but these are not same, तो you will write A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so it is not an AP. Clear? Now seventh part, 0 minus 4 minus 8 minus 12 and so on. Again A1 comma A2 comma A3 comma A4. It is A2 minus A1 minus 4 minus 0. Beta, anything subtracted from 0 or anything is subtracted from a number. If we subtract 0 from any number then only the number is left. मतलब अगर मैं किसी से 0 नहीं माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास वही नंबर बच रहा है. इट इज -4. A3 minus A2. It is -8 minus of -4. -8 plus 4 -4. Now it is clear that दो में ये -4 आ चुका है. For our checking we can check A4 minus A3 minus 12 minus 8 minus 12 plus 8, it is -4. You will write A2 minus A1 equals to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 is equal to -4. So it is an AP. D is -4. बचा नाउ सी, यहाँ पे चल क्या रहा है 4 का टेबल विद नेगेटिव साइन, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या कौन कौन सी आई? -4 3 से 12 तक हो चुका है, -16 -20 -24. क्लियर? नाउ 8th part. Beta, if there is any problem please ask me anytime. Even you can comment on YouTube. You can ask your problems, upload your own solutions. I will check and revert you back. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स यूट्यूब पे मैसेज करके भी बता सकते हो. क्लियर? एंड यू कैन बच्चा आप प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल so that whenever I upload the video you can get the notification and we will do our work properly. Clear? 8th part is -1/2 -1/2 -1/2 -1/2. बेटा प्लीज रिमेंबर, रिकॉल इट कि जब मैंने आपको अर्थमेटिक सीरीज पढ़ाई थी डेफिनेशन, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो भी हो सकता है. जब मैंने बोला था ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि वो सेम ही नंबर आएगा. अब यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि सेम ही नंबर चल रहा है, पर फिर भी हम प्रूव करेंगे. ठीक है? A1 A2 A3 A4. Clear? Now A2 minus A1 -1/2 minus of -1/2 -1/2 plus 1/2 0. सेम है. A3 minus A2 -1/2 minus of -1/2 -1/2 plus A/2. अगर आपको ऐसे करना है you can do in that way also. Clear? Then you will say A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 equal to 0 is equal to D. It is an
ए पी। अब बेटा देखो 0 जिसमें भी ऐड करूंगी वो नंबर ही आएगा, तो सीधा लिख दो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन कौन सी होगी, -1/2, -1/2 एंड -1/2। यस, 9th पार्ट 1 3 9 27 एंड सो ऑन। यस बच्चा, ये तो क्लियर कट ही दिख रहा है कि नहीं है, बट स्टिल इट इज A1 A2 A3 A4, A2 minus A1 3 minus 1 2, A3 minus A2 9 minus 3 6. So you will write here, I am raising it, here you will write A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, it is not an AP. Now 10th part A 2A 3A 4A and so on. बच्चा आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मीन्स वी आर एट 10th पार्ट। अगर हम इस यहाँ तक हमें अब क्लियर वैसे हो रहा है कि कौन सी चीज़ हमें डायरेक्टली ऑलमोस्ट पता चल रहा है। अगर विद प्रैक्टिस यू आर एबल टू सॉल्व, इफ विद द प्रैक्टिस यू आर एबल टू सॉल्व इट डायरेक्टली, exactly now you come to know those who are very good in calculation, they directly can check that कि सिर्फ 1A ऐड हो रहा है हर बार, 1A था 2A हो गया 3A 4A, then there is no need to check it, simply you can write D is A and the next 3 terms are। बट यहाँ पे अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, तो मैं अभी क्या करूँगी, इसको चेक करके बताऊँगी आपको। ये देखना है, कैसे देखेंगे, 2A minus A 3A minus 2A A 4A minus 3A यू विल राइट। फिर चाहे ऊपर नंबर, ऊपर इनको आपने लेबलिंग नहीं भी की, डायरेक्टली यू कैन राइट A2 minus A1 इज इक्वल टू A3 minus A2 इज इक्वल टू A4 minus A3 इक्वल्स टू A। क्लियर? यस, इट इज एन AP। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन कौन सी होगी, सीधा ही 5A 6A 7। I hope it is clear to you. Next is 11th part. The statement is A square A cube A4। नाउ चेक इट, A स्क्वायर माइनस A, बेटा क्या कॉमन निकल रहा है, A अंदर, यहाँ पे स्क्वायर था तो A बच गया, यहाँ पे A था तो 1 आ गया। A क्यूब माइनस A स्क्वायर, छोटी वाली पावर A स्क्वायर, अंदर बचा A माइनस 1। क्या ये सेम है? नो, यहाँ पे A था, यहाँ पे A स्क्वायर, तो यू विल राइट A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, it is not an AP। clear? 12th part under root 2 under root 8 under root 18 under root 32। बेटा सी सिर्फ 2 ही है जो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, अंडर रूट 8 तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालेंगे। देखो जिसको डायरेक्टली क्लियर है वो डायरेक्टली 8 के फैक्टर लिख सकता है, क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर नहीं तो पहले 8 के फैक्टर निकाल लो, 2 4 2 1। क्लियर? अब 18 के निकाल लो, 18 2 9 2 3 3 सॉरी 3 आना है, 3 3 1 2 3 2 इंटू 3 32 के डायरेक्टली 2 की पावर 5 होते हैं। नेक्स्ट तो ठीक है, ये रफ वर्क था। अब यहाँ पे तो कोई पेयर बाहर नहीं निकल रहा, यहाँ से एक 2 पेयर बाहर निकल रहा है अंडर रूट से, यहाँ से किसका पेयर बाहर निकल रहा है 3 का, यहाँ से 2 अंडर रूट के पेयर बाहर निकल रहे हैं, तो यह है अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2
3√2 4√2। बेटा ये देखो सेम हो गया इसकी तरह, a2 है 3 है 4 है, यहाँ पे उसके साथ क्या है √2। क्लियर। अब देखो मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ ये, हाँ जी बेटा। अब क्या आया वही 2√2 माइनस √2 कॉमन 2 माइनस 1 √2, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करूंगी 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट 3√2 माइनस 2√2, यही आना था ना, a2 माइनस a1। अगर कंफ्यूजन है लिख लो a1 a2 a3 a4। इवन यू कैन राइट हियर a2 माइनस a1 a3 माइनस a2। अगेन क्या कॉमन निकलेगा √2, 3 minus 2 1 √2। So you will write a2 minus a1 equals to a3 minus a2 equals to d equals to √2। So yes, it is an AP। So next three terms are directly directly 4√2 तक चल रहा था, फिर क्या आया 5√2 6√2 7√2। बेटा नाउ सी, उसने मुझे रूट में बोला था है ना, 5 बाहर है रूट के, इसका मतलब अंदर क्या होगा इसका पेयर। तो आप यहाँ पे इसी की फॉर्म में दे सकते हो, मीन्स इसको 2 बार लिख लिया। यहाँ पे 6 बाहर था, मीन्स अंदर क्या होगा इसका पेयर, तो अंदर बाहर कितनी बार आएगा ये 2 टाइम्स। अगेन हेयर मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे। सो ये आया 5 आएगा 25 2 50 6 6 36 2 36 को 2 से मल्टीप्लाई, अगर ऑरली नहीं आता तो 7 7 49 एंड 2 98। मैं फिर भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो दीज आर द नेक्स्ट। बच्चा कीप दिस इन योर माइंड कि जिस चीज़ में मतलब जिस फॉर्मेट में उन्होंने मुझे पूछा है ना, मेरा आंसर भी उसी फॉर्मेट में हो। क्लियर, नोट इट। मैं सिर्फ ये 11 पार्ट नोट कर रब कर रही हूँ, आप 12th नोट कर लो। थर्टीन पार्ट √3 √6 √9 √12। Again check, √3 is already in simplified form, √6 is already in simplified form। बचा √9 के पहले आप देखो ये लिखा, इसके भी मैं अगर फैक्टर बना के लिख दूं 12 के फैक्टर 4 3 12 2 into 2 into 3 and so on। क्लियर। इसको मैं दे रही हूँ a1 a2 a3 a4। अब देखो a2 माइनस a1 2। बेटा अगर ये हम अपने फर्स्ट चैप्टर में 9th क्लास में कर चुके हैं कि अगर दोनों की प्रोडक्ट अंडर रूट में है तो इंडिविजुअली भी वो अंडर रूट अलग अलग हो जाएंगे। √2 इंटू √3 माइनस √3, क्या कॉमन निकला √3, अंदर क्या बचा √2 माइनस 1। नाउ a3 माइनस a2 a3 √3 इंटू √3 9 माइनस √2 इंटू √3, √3 कॉमन निकला, अंदर क्या है √3 माइनस √2। सो यू विल राइट, क्या लिखोगे a2 माइनस a1। आई होप बेटा आप लोग नोट कर चुके हो। मैं ये पार्ट करने के बाद आपको 1 मिनट दे देती हूँ। क्लियर। a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इट इज नॉट एन a2। यू पीपल नोट इट। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ नोट करने के लिए। 14th की मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। आप 1 मिनट नोट करो बेटा, आई गिव यू द टाइम, जस्ट नोट इट। बी फास्ट।
Yes beta, I hope you noted it down. Now A1, A2, A3, A4 and so on. A2 minus A1, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. बच्चा अब कईयों को इजी लगता है कि इनके स्क्वायर खोल के सॉल्व करना, कईयों को फॉर्मूले के साथ. इट इज अप टू यू दैट हाउ टू यूज द कैलकुलेशन. 3 स्क्वायर मीन्स 9, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 9 minus 1 8. A3 minus A2, A3 is 5 square minus 3 square, 5 5s are 25 minus 3 3s are 9, ये आया 16. Is it equal? You will write A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. It is not an AP. Now last part of this exercise and last means we will done with our 5.1 today. Note it. Fifteenth part. The statement is 1 square, 5 square, 7 square, 73. It is 1 square. So A1, A2, A3 and A4. Now A2 minus A1. 5 square minus 1 square. 5 square. Bacha, here I opened with the square formula. I am here doing with the formula A square minus A B square, ताकि आप लोगों को क्लियर होए कि मैं कैलकुलेशन कैसे बोल रही हूँ. A square minus B square, A plus B, A minus B. So here A2 minus A1 is equal to 5 plus 1, 5 minus 1, 6 into 4, 24. Now A3 minus A2, it is 7 square minus 5 square. Again A square minus B square, it is A plus B, A minus B. Clear? Then A3 minus A2, क्या हो गया? 7 plus 5, 7 minus 5. 7 plus 5, 12, 7 minus 5, 2. It is 24. Clear? A4 minus A3. But now here it is not the square. So you have to find the square of 7. It is 73 minus 49. And 13 में से 9 minus करे 4, 6 में से 4 minus करे 2. So you will write A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 equals to D equals to 24. I am erasing it. You will write yes, it is an AP. So next 3 terms are. बचा सी, पहली 3 टर्म्स उसने मुझे स्क्वायर में दी, उसके बाद उसने खुद ही सॉल्व दी है. तो नाउ देयर इज नो नीड टू चेक द परफेक्ट स्क्वायर. अगर कहीं बीच में आ गया और आपको पता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, देन यू कैन राइट इट डायरेक्टली. सी नाउ द A5th, A4 plus B. What is A4? 73 plus 24. It is 4 or 3 7, 97. A6, A5 plus D. 97 plus 24. 7 or 3 10, 1 11, 10. Now it is square of 11. अगर आपको डायरेक्टली क्लियर हो रहा है तो लिख दो, नहीं हो रहा तो यू कैन राइट 121. क्लियर? A7, A6 plus D. 121 plus 24. So next 3 terms are, कौन कौन सी होगी? 97, 121, 140. I hope this exercise is clear to you and you people will not face any difficulty. Bacha, note it down and we are done with our exercise 5.1. And if there is any doubt, ask me, comment on YouTube. Here you can even upload the solution of your question solved by you so that I can check, and if there is any problem I will guide you. But please like and subscribe my channel, like the video and subscribe the channel. Thank you so much.